سے آئے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور وہ آج سارا دن نہ ملے نہ نظر آئے. جہاں جہاں نظر آئے اس کا تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ کیا ان کے کردار اور کیا عمل رہا آج سارا دن. لیکن آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلسہ ہونا تھا لاہور میں، اور کل لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے اس اجازت نامے پر دستخط کیے اور 3 سے 6 کے ٹائم پر راضی ہو کر وہ وہاں گئے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے جو غلیظ زبان استعمال کی، جس قسم کی گفتگو کی، جس قسم کا رویہ، عمل اور بد کرداری کا ثبوت دیا، وہ پورے پاکستان نے دیکھا. اس سب چیزوں کے باوجود ایسے شخص کو عام حالات میں آپ اور میں گھر نہ گھسنے دیں. اس کی زبان خواتین کے بارے میں، جس کا کردار خواتین کے بارے میں، جس قسم کی غلیظ گفتگو انہوں نے اسٹیج پر چڑھ کر اسلام آباد میں کی، اگر مجھ سے پوچھا جائے یا کسی بھی شریف شخص سے پوچھا جائے تو ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں. ان تمام چیزوں کے باوجود، ان کے ٹریک ریکارڈ کے باوجود، سپریم کورٹ کے باہر یہ گندے کپڑے لٹکانے والے لوگ، منتخب وزیر اعظم کو گالی دینے والے لوگ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے والے لوگ، پیٹرول بم نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے والے لوگ، 9 مئی کے مجرم جو ریاست پر چڑھ دوڑے تھے، شہداء کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے والے لوگ، ان تمام چیزوں کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے خیبر پختونخوا وفاق کی آکائی کا احترام کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پنجاب میں ان دھمکیوں کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت دی. آپ نے آج اپنی سکرینز پر دیکھا، آپ نے آج خود اپنے چینلز پر میڈیا والوں نے دکھایا کہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری موٹر وے کھلی، اسلام آباد سے لاہور تک پوری جی ٹی روڈ کھلی ہوئی تھی، لاہور کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، چاہے وہ مال روڈ ہو، چاہے وہ فیروز پور روڈ ہو، چاہے وہ جیل روڈ ہو، جتنی مین شاہراہیں تھیں وہ سب کھلی ہوئی تھیں. تمام راستے کھلے ہوئے تھے، پورا رنگ روڈ کھلا ہوا تھا. تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود 3500 کرسی، یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جلسہ گاہ میں لگائی گئی. ان کی ٹویٹس پر نہ جائیں، یہ پتہ نہیں کون سے پہاڑی علاقے کی ٹویٹیں کر رہے ہیں جلسے گاہ کی. پرانی حرکتیں پہاڑیوں کی تصویریں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. سوشل میڈیا سیل، پروپیگنڈا سیل ان کا جو ہے، جھوٹی تصویریں لگا رہا ہے، بعد میں معذرت کرتے ہیں، بعد میں تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہیں. تمام راستے کھلے ہوئے تھے، ہر سڑک کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے. لیکن ان کی اوقات بھی کھل کے سامنے آ گئی. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو آنے کی اجازت دی، اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب، آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھیں اسلام آباد میں، اتنی دھمکیاں دی تھیں اسلام آباد میں، تو آپ کل رات تشریف لے آتے لاہور میں. آج جو کہا کہ میں لاہور میں رہنے آیا ہوں، وہ بھائی رہنے نہیں آنا تھا، لاہور میں جلسہ کرنے آنا تھا. آپ کیوں نہیں پہنچے؟ کوئی قیادت ان کی مین، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں، جو وہاں سے فساد، انتشار، لڑائی جھگڑے کی کالیں دیتا ہے، آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا، آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئیں، ملک کو جلا دینے کی کالز دیتا ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो, और यहाँ मैं इनकी तरह बिल्कुल किसी सूबाइयत की, किसी सूबाई की बात नहीं करना चाह रही, लेकिन हकीकत ये है कि तुम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो। आज तमाम रास्ते खुले थे, क्यों नहीं आए? क्यों लाहौर नहीं पहुंचे? एक रजिस्टर जेल में मौजूद था जिसको हाजिरी का टिक मार्क करके भागे, वहां से दौड़े लगाते रहे स्टेज से। 200 MPAs और MNAs हो, 10-10 बंदे ही ले आते। कोई लाहौर की सड़क पे कोई काफिला आपको नजर आया? ये सब रिपोर्टर्स बैठे हैं यहाँ पे। असल बात ये है कि पंजाब की आवाम ने, लाहौर की आवाम ने और पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मैं आज पंजाब की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं लाहौर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यही वो असल हकीकत है कि हमें इंतशार की, फसाद की, रियासत के ख़िलाफ़ सियासत को मुस्तरद करना पड़ेगा, और हमें कारकर्दगी की, पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ की जो सियासत है उसका साथ देना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने देखा कि आज वहाँ से जब खैबर पख्तूनख्वा से निकले, सवाबी में काफ़िलों के साथ आना था, कंटेनर पर चढ़कर आना था, गालम गलोच देते हुए आना था। वहाँ मौसूफ खड़े नहीं हुए क्योंकि टेंट खाली थे। आप लोगों के मीडिया ने वो दिखाई, वो तमाम फुटेजेस दिखाई। ये आपको जो फुटेजेस आज नज़र आ रही हैं, ये सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे की फुटेजेस हैं, पूरे लाहौर शहर की, पूरे इंटरचेंजेस की, मोटरवे की, रिंग रोड की। ये आपके सामने टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, GIS कोऑर्डिनेट्स के साथ ये तमाम फुटेजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। और अपनी गाड़ियां रोकते रहे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा, और कहता क्या रहा कि ये कंटेनर मुझे रोकने के लिए खड़े हुए हैं। एक कंटेनर में और एक वैन में, एक जो वहाँ गाड़ी खड़ी थी जिसका मौसूफ शीशा तोड़ते रहे, बंदूकों के साथ शीशा तोड़ते रहे, राइफल्स और क्लाशनकोफ घुमाते आए, रोक रोक कर गाड़ियाँ तोड़ते रहे कि किसी जगह कोई फसाद हो। मैं इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आज उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और आज उनको खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये होता है वज़ीर आला का किरदार जो मरियम नवाज शरीफ का किरदार आज रहा। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उन्होंने तमाम रास्ते खोल कर इनको जलसागाह करने का, अपना सियासी इजहार करने की दावत दी, उनको इजाज़त दी, और ये क्या करते आए? बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते आए अमीन गंडापुर साहब। तो मैंने जैसे कहा कि तमाम रास्ते तो खुले थे, लेकिन आज इनकी सियासी औकात भी सामने आ गई है कि अवाम को इन्होंने मुस्तरद कर दी, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। और एक और जो मैं चीज़ ख़ास तौर पर बताना चाहती हूँ कि जिस वक़्त इनको ये पता चल गया कि सड़कें तो खाली हैं, घरों से लोग निकले नहीं हैं, और कोई कंटेनर और कोई रुकावट नहीं है, अपने काफिले की इन्होंने स्पीड आहिस्ता कर ली। जो आराम से यहाँ ये 4:30-5 बजे पहुँच सकते थे, खुद गाड़ियाँ रोकते रहे, डंडे वालों से गाड़ियाँ रुकवाते रहे, और जलसागाह में नहीं पहुँचे। और मेरा सवाल ये है, किधर गए आप? आपने तो जलसागाह लाहौर आना था, आपने तो ढोल वाले लेकर लाहौर आना था। कहाँ हैं आप? वो ढूंढ रहे हैं, हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसागाह में पहुंचना था? क्यों नहीं आए जलसागाह में? और अगर आज नाकामी और अपनी असलियत और अपने इबरतनाक इख्तिताम का यकीन हो गया है, ठंड पड़ गई है, तो अमीन गंडापुर साहब, आप एक खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के सूबे के वज़ीर आला हैं। अगर आज आपको ठंड पड़ गई है तो अब आएँ, मरियम नवाज शरीफ के साथ
ट्रैक्टर स्कीम का मुकाबला करें, किसान को रिलीफ देने का मुकाबला करें, किसान कार्ड का मुकाबला करें, ताकि किसान जो हैं वो अपनी खाद, अपनी ज़मीन ज़रखेज़ करके रोज़ी कमा सके, अपने हालात बेहतर कर सके, जो पंजाब में लॉन्च हो गई है। अगर आज ठंड पड़ गई है तो आए मरियम नवाज़ के साथ फील्ड हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें, एयर एम्बुलेंस का मुकाबला करें, नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुकाबला करें, नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम का मुकाबला करें, नौजवानों के साथ जो बिजली को रिलीफ दिया मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, बिजली में जो पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया है उसका मुकाबला करें। मरियम नवाज़ के तारीख़ के सबसे बड़े सोलर प्रोग्राम का उसके साथ मुकाबला करें, सोलर ट्यूबवेल्स की स्कीम का मुकाबला करें, जो मुफ्त आज पंजाब की आवाम को दवाई मिल रही है, आए उसका मुकाबला करें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ। जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने फ्री मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया है, आए उसका मुकाबला करें अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ। आए अब सेहत में, तालीम में जो इक़दामात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किए हैं अब उसका मुकाबला करें। आए हिम्मत कार्ड जो इंट्रोड्यूस हो गया है उसका मुकाबला करें। नौजवान को आज जो ई बाइक मिल रही है उसका मुकाबला करें। गरीब को जो अपना छत और अपना घर मिल रहा है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, उसका मुकाबला करें। आए अब ये धावे बोलना, गाली देना, गालम गलोच करना, ये ना हमें सिखाया गया और ना हम इसमें आपका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम इंतशार की, फसाद की सियासत को खुदा हाफिज आज कह चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 6 माह में महंगाई 40% से 9% पर पहुंच गई है। आए इसका मुकाबला करें। पाकिस्तान की आज स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, आए इसका मुकाबला करें। आए मिलकर आप कारकर्दगी की सियासत करें, लेकिन आपकी किस्मत में, आपके लीडर की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं डाली, वरना 4-4.5 साल जो मईशत को तबाह करके गए हैं इन्हीं कारनामों की वजह से करके गए हैं, इन्हीं झूठों के, क्योंकि नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना और पाकिस्तान की तरक्की न कभी थी, न कभी है, न कभी होगी। अल्लाह ताला भी तौफीक उसको देता है जिसकी नीयत पाकिस्तान की आवाम की को रिलीफ देना हो, उनकी तकालीफ दूर करना हो। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत को सही रास्ते पर डाल रहे हैं, आप तो डिफ़ॉल्ट कर चले गए थे, ये वो लोग हैं। आज ये इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं, धावे इसलिए बोलते हैं, गुंडागर्दी इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। आज नौजवान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, उनके रोज़गार के ख़िलाफ़ हैं, उनकी नौकरी के ख़िलाफ़ हैं। ये दो आज PTI का जलसा खाली बात नहीं थी, आज दो